لاہور پریس کلب میں پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکر پاکستان کی زراعت IMF کے نشانے پر اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ کا پچھلے سال سے کمپیریزن کر لیں کہ 91% آپ کی چلی کے ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 87% آپ کی بیس کے ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 50% آپ کی کنو کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 50% پیاز کے ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 42% 4 ماہ میں چاول کے ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور امپورٹ میں 348% اضافہ ہوا ہے کاٹن کا، 348%۔ آپ نے سویابین 6,12,000 ٹن استعمال امپورٹ کیا پچھلی دفعہ، ان 4 ماہ میں 1 کلو بھی نہیں آیا تھا، 1 کلو بھی نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ اس کی جب اپنی فصل آ رہی ہو تو وہ باہر سے امپورٹ کرے۔ یہ صرف پاکستان نہیں، پاکستانی کاشتکار کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خدا کی قسم اس وقت۔ پاکستانی کاشتکار سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر۔ کیا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ حکومت کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ امریکن کاشتکار کو، برازیل کے کاشتکار کو؟ اگر امریکن کاشتکار کپاس بیچے تو وہ ڈیوٹی فری ہے، اگر پاکستانی کاشتکار ہو گئے تو اس کے اوپر 18% GST ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے پاس دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کیا ہم کاسٹ آف پروڈکشن میں دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ریسرچ کا ہمارا بجٹ کیا ہے؟ دنیا کا کیا ہے؟ ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی GDP کا 0.1 ہے۔ برازیل نے کیوں چند سالوں میں ترقی کی؟ اس کا 1.75 ہے۔ اب اگر آج حکومت IMF کے پریشر میں ہمارے انپوٹس کے اوپر GST لگانے جا رہی ہے، ٹیکسز لگانے جا رہی ہے، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں حکومت چاہیے کہ پھر اسلام آباد اسمبلی کے باہر زراعت کی کل خالی بڑھائے کیونکہ زراعت ختم ہو گئی پھر ہم یہ ادا نہیں کر سکیں گے، کھاد نہیں خرید کر سکیں گے، پیسٹیسائڈ نہیں خرید کر سکیں گے، بیج نہیں خرید کر سکیں گے، ڈیزل نہیں خرید کر سکیں گے، بجلی کا بل ادا نہیں کر سکیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کے وفاقی وزیر خود بتا رہے ہیں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے وزراء کے اختیار میں کچھ نہیں، پھر بنایا کیوں ہے آپ نے اس ملک کو؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، متعلقہ وزیر ہی اس کا بااختیار ہوتا ہے۔ اگر ہمارے وزراء سامنے بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے، ہمارا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ آج پاکستانی کاشتکار یقین کر لیں اس کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ صحیح طریقے سے سانس نہیں لے سکتا۔ جب وہ گھر جاتا ہے کہ میں بچوں کو کھلاؤں کہاں سے، پڑھاؤں کہاں سے، علاج کہاں سے کروں، بچوں کی شادیاں کہاں سے کروں؟ صرف ایک فصل میں 1600 ارب روپے کا میں ٹیکہ لگایا گیا گندم میں، جان بوجھ کر، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ پھر سلما بٹ صاحب آتی ہے کہ گندم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ محترمہ تمہیں پتا ہے گندم کیسے اگتی ہے؟ محترمہ تمہیں پتا ہے کہ کسان رات کو ننگے پاؤں سخت سردی میں کوڑے میں وہ پانی کس طرح لگاتا ہے اس کو؟ آپ کے تم ٹی وی پہ بیٹھ کر تمہیں زراعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی تو ہماری نااہلی ہے کہ نااہل لوگوں کو آگے پر بٹھا دیتا۔ چنگیز خان نے کہا تھا، اس کے ہسٹوریکل ورڈ ہے کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس میں خون کے دریا بہائے وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا۔ تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائف کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا۔ ہماری بدقسمتی کہ وہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جس ظلم کو چنگیز خان ظلم کہتا تھا۔ آج زراعت اس ملک سے جا رہی ہے۔ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی بات سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ یہی کپاس 92 میں ہماری 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی، انڈیا 1 کروڑ 10 تھا۔ آج ہم 50 لاکھ لے آ گئے، انڈیا 4 کروڑ میں چلا گیا، ہمارا دشمن ہو۔ کیوں؟ ہماری ترجیحات نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے کاشتکار کو سپورٹ نہیں کیا۔ ہم نے امریکن کاشتکار کو، برازیل کے کاشتکار کو، وہاں سے میرے خیال میں کمیشن آتی ہے یا پریشر ہوتا ہے، مجھے اس چیز کا نہیں پتا۔ یہ تو عوام اس چیز کا سوال کرے حکومت سے کہ وہ کون سی وجہ کہ اپنی زراعت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور دوسرے کاشتکار کو خوشحال کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستانی کاشتکار
तौबा कर रहा है ज़राअत से, क्योंकि उसे हर फसल में नुकसान हो रहा है, हर फसल में। इस दफा चावल की फसल हमारी उड़ गई, मक्की की फसल उड़ गई, आम की फसल यकीन कर इस वक्त बाकी 35% खड़ी है। प्याज हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है 30 से 35 रुपए किलो है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है रेट उसके ऊपर 8 रुपए किलो में रेट मिल रहा है। हमारी तमाम सब्जियां इस दफा किसी का रेट नहीं मिला, उसकी मैं वजह आपको बता दूंगा। गंदम का अच्छा रेट काश्तकार को मिलेगा, गंदम का काश्तकार को फसल अच्छी होगी, अगली फसलें खुद ब खुद आपकी अच्छी होगी, क्योंकि 4.5 करोड़ एकड़ में से 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है, आपकी मेजर फसल है। अगर गंदम के आपको रेट ना मिला, फसल अच्छी ना हुई, तो काश्तकार के पास पैसे नहीं होते कि अगली फसलों में खर्च कर सके। उसका सबूत ये है, 2 साल पहले मैं 3900 रेट मिला, पिछले साल हमने आपको ग्रोथ की 6.5। अगर पिछले साल गंदम का रेट नहीं मिला, इस साल आपकी ग्रोथ आ गई है 0.5। ये लम्हा फिक्रिया हुकूमत के लिए, मैशत के लिए, मैशत दानों के लिए कि बिलियन ऑफ डॉलर के ज़राअत की वजह से इस मैशत का नुकसान हुआ है। इसमें कोई सजा है? कोई आई रिपोर्ट हुकूमत की कि ये 0.5 पे 6.5 से नीचे क्यों आई है? आपके पास सिवाय ज़राअत के और है क्या पाकिस्तान में? ना आप इंडस्ट्री में है, ना आप IT में है। एक ज़राअत की आपने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया, फिर कहते हैं कि हमने पैकेज दिया, पैकेज दिया, पैकेज दिया, कर्जा दिया। ओ भाई, हम भिखारी नहीं है। काश्तकार की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, हमें अपनी जिनस का जायज रेट चाहिए। सिर्फ हम चाहते हैं जो दुनिया का कानून है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 25% प्रॉफिट, हमें वही मिल जाए, हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम इससे ज्यादा नहीं मांगते। अगर काश्तकार से बजाय उसको प्रॉफिट देने की बजाय उसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का मिले ही 40%, 60% उसको नुकसान हो, वो बेचारा क्या करेगा? क्या अगले साल गंदम काश्त होगी? मुतबा हमने तो गंदम इस दफा काश्त की, जो आप हर जगह पे बता रही हैं कि गंदम ज्यादा काश्त हुई है। हाँ, हमने काश्त की, आपने एतमाद किया। आपने हर जगह पे खड़े होकर कहा था कि मैं अपने काश्तकार के भाई के साथ खड़ी होगी, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी, लेकिन आप हमारे साथ खड़ी ना हो सके। आपने काश्तकार का नुकसान करवा दिया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि काश्तकार को मार दिया, जिंदा दरगोर कर दिया काश्तकार को, एक सिर्फ सियासत चमकाने की खातिर कि हमने आटा सस्ता दिया। भाई, मैं चाहता हूं आटा सस्ता हो, गरीबों को आटा सस्ता दे, मैं चाहता हूं गरीबों को आटा मुफ्त दे, लेकिन काश्तकार के मौशी कत्ल पे ना दे। अगर करोड़ों काश्तकारों का मौशी कत्ल करके आप कुछ लोगों को आटा सस्ता देंगी, और वो भी किनको? गरीबों को अलावा मॉडल टाउन के रहने वालों को, गुलबर्ग के रहने वालों को, 5 स्टार होटल में खाना खाने वालों को, DH में रहने वालों को, उन सबको अगर आटा सस्ता देगी काश्तकार की कीमत पर, अगर काश्तकार बढ़ गया तो बाकी आपके पास बचेगा क्या? कहते हमारे पास पैसे नहीं है। अपनी बरात तो आपने बढ़ा दी, अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा दी, वज़रा की, MNA, MPA, सेनेटर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी। एक सिर्फ काश्तकार ही मुल्क दुश्मन है क्या? काश्तकार से बड़ा कोई मुल्क का वफादार हो सकता है जो साल के 365 दिन आपके लिए काम करता है? इस चीज की परवाह किए बगैर उसकी कोई पेंशन नहीं है, इसकी परवाह किए बगैर कि काश्तकार का कोई मेडिकल फ्री नहीं है, इसकी परवाह किए बगैर कि उसको कहीं एजुकेशन में, कहीं बच्चों को भर्ती में कोई उसका कोटा नहीं है, उसके बावजूद साल के 365 दिन एक दिन भी वो छुट्टी नहीं करता। आपको हर चीज पैदा करके देने वाले को, हर चीज पैदा करके देने वाले को, वो चाहे गोश्त है, सब्जियां, फ्रूट है, गंदम है, चावल है, कपास है, हर चीज पैदा करके देने वाले को इस मुल्क में लक़ब क्या दिया जाता है? पेंडू और गवार का लक़ब दिया जाता है। इज्जत की निगाह से उसे देखा नहीं जाता, उसे पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। आज मैं इस हुकूमत के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए हमें IMF के चुंगल से लेंगे। अगर आपने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, मैं खुदा की कसम खा के जा रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये 25 करोड़ आवाम को तो खाना नहीं दिला सकते। अगर ये
काश्तकार कर गया भूखा, तो फिर ये 25 करोड़ आवाम की फूड सिक्योरिटी रिस्क में लग जाएगी। आपको बाहर से कोई चीज नहीं मिलेगी। अब बाहर से डॉलर है आपके पास इम्पोर्ट करने के लिए, आप सहूलतें दे रहे हैं बाहर से आने वाले कपास को, बाहर से आने वाले सोयाबीन को, बाहर से हर चीज ड्यूटी फ्री और पाकिस्तानी काश्तकार के ऊपर जीएसटी। अगर बजट में हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर जीएसटी लगी और हमारे इंपोर्ट्स के रेट कम ना हुए, तो फिर मुझे बार बार अच्छा लगता है कि मैं कसम उठाऊं, पाकिस्तान में ज़राअत फिजिबल नहीं है, पाकिस्तान में फिर ज़राअत नहीं हो सकती। फिर हम बजट के बाद मैं याद करता हूं कब इस्लामाबाद असेंबली के बाहर बैठ के इसका जनाजा भी पढ़ाएंगे, वहीं बैठ के कुर्बानी भी करेंगे। ज़राअत को आपको लेके चल रही है, ज़राअत को आपको बरोक दे रही है, ज़राअत ये तो आपकी फूड सिक्योरिटी के ज़ामिन है, ज़राअत तो आपको सब कुछ दे रही है। आज हम बचपन से सुनते आ रहे थे घर ताने होते कमले में से आने, वो ज़राअत की बदौलत है। आप आईटी में आगे नहीं जा सके, आप इंडस्ट्री में आगे नहीं जा सके। आपकी पिछले साल हमारी ग्रोथ थी 6.5, आपकी इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ थी 1%, आईटी की आपकी क्या ग्रोथ थी -। जब आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर ज़राअत आपकी तरजीहात में क्यों नहीं है? आज मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर तमाम सूबों में भी, वफाक में भी ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो खुदा की कसम इस मुल्क से ज़राअत जा रही है। हमारे लिए बाइस शर्म है कि कुदरत ने तो हमें तमाम नवाजों से नवाजा। दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी इलाका हमारे पास, कराची से लेकर पेशावर तक, जंगलात हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास, रोही हमारे पास, टूरिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास। फिर हम 10 से 12 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए बाइस शर्म है, क्योंकि हमें विल नहीं है, हमने रिसर्च पे तवज्जो नहीं दी, हमारा कोई मार्केटिंग मैकेनिज्म नहीं है, दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। आपके सामने हमें आज के रेट का नहीं पता कि बिल्डर का में आज रेट क्या मिलना है। हमारे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को आज से 8 माह पहले बता दिया गया था कि जो इससे अगली फसल आएगी उसका रेट ये होगा। ये उसकी फ्यूचर मार्केट है। फिर अभी वफाकी हुकूमत ने एक फैसला किया है, एक और कतल का फैसला किया मौशी कतल के काश्तकार का, जो उनके पास 24 लाख टन गन्ना पड़ी है उसको रिलीज कर रहे हैं। दुनिया में कभी किसी जगह पे, किसी मुल्क में जब काश्तकार की कोई चीज आ रही हो, काश्तकार के पास हो, ना हुकूमत रिलीज करती है ना उसे बाहर से आने देती है। अब बाहर से ऑर्डर आ रही है, पाकिस्तान के काश्तकार की पिछले साल की 6 लाख गांठ इस वक्त तक पड़ी है। काश्तकार बेचारा क्या करे, किस किस से लड़े? भाई काश्तकार तो पाकिस्तानी नहीं है, इंसान नहीं है। अगर होता तो फिर चीफ मिनिस्टर साहबा इस वक्त तक काश्तकारों के साथ कम से कम 5-6 मीटिंग्स कर चुकी होती बजट के ऊपर। उन्होंने हमें इंसान तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब काश्तकारों के बेतहाशा वफूद से मिल चुके होते। मैं एक मीटिंग में गया हूं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में, वहां पे वो स्टेक होल्डर आए होते जिनका दूर दूर तक ज़राअत से ताल्लुक नहीं था, वो ज़राअत के फैसले हो रहे थे। लेकिन जब तक मेन स्टेक होल्डर को ना बुलाया जाए, पता उसी को जिसको जो खुद हल चलाता है, ज़राअत का उसी को पता जो खुद प्रैक्टिकल काश्तकार है। पढ़ने से ज़राअत नहीं आती, पीएचडी करने से ज़राअत नहीं आती। मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूं, मेरा जो अनपढ़ मुंशी है वो कई पीएचडी से बेहतर है, क्योंकि उसका तजुर्बा है। मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूं, मेरा काश्तकार के अलावा कोई बिजनेस नहीं है। तो इस वक्त हम अपने ठेके अदा नहीं कर सकते, हम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। आप यकीन करें किस हद तक मजबूर है। मैं अपनी मजबूरियत क्या बताऊं कि हम इस लेस्को से बिजली का बिल ठीक नहीं करवा सकते। मेरी रात सीओ लेस्को से मीटिंग थी, पहले मैं कहता बिल हमारे ठीक हुए, कहते कब दिए थे? मैं कहती आपको ये बिल तो दिए गए हैं, 1000-2000 बिल, आज से मैंने कहा 4 माह पहले दिए हैं। 4 माह हो गए, लेकिन उनकी करेक्शन नहीं हो सकी। और उसमें जुमल कितने फालतू है? 2016 में हमने देना था कसूर में 2 अरब रुपया काश्तकारों ने देना था। मैंने जाके वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करके फर्ज कॉलेज शुरू करवाया पूरे पाकिस्तान का, सिर्फ कसूर का हुआ, उस बाद नहीं हुआ फर्ज कॉलेज। क्या हुआ कि 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। आज से 8 माह पहले
हमने 500 बिल लेके उसका खुद गलत करके मिनिस्ट्री को दिया कि इसको चेक कर ले, अगर हमने गलत किया है तो हमें कह दे। वहां से टीम आई, 8 दिन टीम कसूर में रही। सर 4.5 करोड़ यूनिट निकल आया उन बिलों में से, 4.5 करोड़ यूनिट। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। क्या इसमें सारे हिस्सेदार हैं? मुझे तो अफसोस इस बात का कि सरदार अवैस खान लगानी हमारे जिम्मेदार भाई है, लेकिन उनके इतने होने के बावजूद उन एक्सीएल और एससी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, और साबित होने के बावजूद टीम उनकी आई थी, मेरी टीम नहीं थी, इस्लामाबाद से टीम आई थी। आज ज़राअत के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, और ये बजट में जो हम सुन रहे हैं कि IMF के निशाने पे आ गई ज़राअत, क्योंकि दुश्मन जब दुश्मनी करता है तो उसे मैशत पहले तबाह करता है। इस वक्त पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया जा रहा है। हमारे ऊपर बैठे लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने को चाहिए था कि जब वो डायलॉग कर रहे थे IMF से, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा पाकिस्तान के किसानों को बचाया जाए, वरना पाकिस्तान से ज़राअत ख़त्म हो जाएगी।